بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ بلوں میں مسلسل اضافہ، فیصل آباد کے صنعتکار سیخ پا۔ صنعتکاروں کا کہنا ہے یونٹ کا موجودہ ریٹ انڈسٹری کے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں۔ میاں طارق بولے، ہم 72 روپے فی یونٹ کے حساب سے بل ادا کر رہے ہیں، حالات نہ بدلے تو مزید ایک ماہ فیکٹریاں نہیں چلائی جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں شراز بٹ سے۔ شراز، بتائیے گا اس حوالے سے۔ صنعتی سیکٹر کے حوالے سے بات کی جائے تو سب سے زیادہ پریشانی جو صنعتکاروں کو ہے وہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے ہے، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں بجلی کی قیمتیں کیا ہوں گی اور کتنی بڑھا دی جائیں گی۔ آئی ایم ایف کی شرائط کے اوپر کب جو ہے وہ صنعتکاروں کے گرد گھیرا مزید تنگ کر لیا جائے گا اور فی یونٹ کی کاسٹ کے اندر مزید اضافہ کر دیا جائے گا۔ حالیہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے بات کریں، جو اس دفعہ بجلی کے بل موصول ہوئے ہیں، اس میں ابھی اگلا اضافہ موجود نہیں ہے۔ وہ 70 روپے سے زیادہ کا فی کاسٹ کر رہا ہے یونٹ، اور اس وقت ہمارے ساتھ میاں طارق صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو مزید کرتے ہیں۔ میاں صاحب بتائیے گا، اس دفعہ جو بجلی کے بل آپ نے ہاتھ میں تھاما ہوا ہے، یہ کس حساب سے فی یونٹ آپ کو کاسٹ کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارا جو بیسک کاسٹ آف مینوفیکچرنگ میں جو پارٹ ہوتا تھا وہ دھاگا ہوتا تھا، اب بجلی ہو گیا ہے، ہمیں بجلی کا پتہ ہی نہیں کہ کون سا یونٹ کس ریٹ پہ کس منتھ میں کیا ریٹ آئے گا۔ اب ایسا ہے کہ ہمارے صرف 3900 یونٹ چلے پچھلے ماہ میں۔ اب اتنے کم کیوں چلے ہیں؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ کام نہیں ہے، فیکٹری بند ہے۔ پہلے 10,000 یونٹ چلتا تھا جب فل کیپیسٹی پہ فیکٹری چلتی تھی، صرف 2-3 مشینیں چل رہی ہیں، تو وہ 3900 یونٹ ہے اور 2,81,000 روپیہ یہ جو بل بجلی کا آیا، تو یہ 72 روپیز 72 روپے 10 پیسے کے حساب سے یہ ہاں ایک یونٹ، یہ جولائی کا بل ہے۔ اب یہ بتائیں کہ ہم کہاں پہ اس کو ایڈجسٹ کر پائیں گے، کہاں پہ اس کو ریکارڈ کریں گے؟ کیا وہ موجود نہیں ہے جو جولائی کے اندر اضافہ ہوا ہے وہ اگست کے اندر آنا ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ وہ 7 روپے بھی شامل نہیں ہے، اس کے بعد 4 روپے بڑھائے ہیں، وہ بھی شامل نہیں ہے۔ ہم یہی ہمیشہ عرض کرتے آئے ہیں ان حکام بالا سے کہ جو ریئل سٹیک ہولڈر ہیں ان کی پریشانیوں کو آپ سمجھیں، ان کو ساتھ بٹھائیں کہ آپ کے کیا مسائل ہیں۔ آپ جب بھی کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اپنی گراؤنڈ رائلٹیز کو لازمی دیکھیں، اپنے نیبرز کو لازمی دیکھیں کہ ہمارا کمپٹیشن تو ان لوگوں کے ساتھ ہی ہے نا۔ ہماری ایکسپورٹ جب بند ہو جائے گی تو ہم کیسے سروائیو کر پائیں گے؟ وہی ٹریڈنگ اکانومی رہ جائے گی اور یہاں کا مزدور بھی بے روزگار ہو جائے گا اور یہاں کا جو مینوفیکچرر ہے وہ بھی بے روزگار ہو جائے گا۔ اب دیکھ لیں کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ لڑکے جو ہے آرٹیکل شپ کے لیے جب فرمز میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس فرمز ہی نہیں ہیں آڈٹ کرنے کے لیے، ان کو وہ فرمز ہی نہیں ہیں کیونکہ نئی انڈسٹری لگ نہیں رہی، پرانی بند ہو رہی ہے، بند ہو کے کباڑ میں جا رہی ہے۔ تو ہم کیسے سروائیو کریں گے؟ ملک کو کیسے اوپر لے کر جائیں گے؟ تو ہم تو یہ عرض کر کے جو بھی حکام بالا ہے تھک گئے ہیں، پچھلے 3-4 سال سے یہی رونا ہے۔ ہر جو مہنگائی میں جو عنصر شامل ہیں ہم تو گاہے بگاہے ان کا رونا روتے رہتے ہیں، لیکن حکام بالا ہیں ان کو اپنی ترجیحات سے فرصت ہی نہیں ہے۔ اگر اس طرح رہو تو آپ کا ملک جو ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جب آپ کی عوام ہی ڈیفالٹ ہو جائے گی، لوگوں کا بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا، اب میں بجلی کا بل میں اس کا نہیں دے سکتا، اس کی ڈیٹ بڑھاؤں گا، اس کی انسٹالمنٹ کرواؤں گا، اگلے ماہ سے کہاں دوں گا؟ ٹھیک ہے، ہم نے خود بھی کچھ لوگ دیکھے ہیں جو کہ اپنے گھر کی چیزیں جو ہے فروخت کر کے اپنے بجلی کا بل جو ہے گھر کا ادا کر رہے ہیں۔ تو کب تک یہ چلے گا؟ اس وقت صنعتکاروں کی جانب سے مایوسی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور اس وقت حکومت وقت سے اپیل کی جا رہی ہے کہ اب بھی اگر سنجیدہ نہیں ہونا تو کب ہونا ہے؟ اب بھی اگر ہمارے مسائل نہیں حل کرنے ہیں تو پانی جب سر سے گزر جائے گا تب جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ شراز بٹ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ کماد کے کاشتکاروں کے لیے اچھی خبر، گنے کی قیمت 425 روپے فی من کرنے کی تجویز۔ کسانوں نے قیمت کو خوشائن قرار دے دیا، کہتے ہیں کاشتکاری مہنگی ہونے کی وجہ سے قیمتیں بڑھانا ضروری ہے۔ مزید جانتے ہیں عبدالرحمان سے، بتائیے گا اس حوالے سے۔ بات کریں کماد کے کاشتکاروں کے حوالے سے، اچھی خبر یہ ہے کہ یہاں پر ابھی 425 روپے کا جو یہاں پر پرپوزل ہے وہ بھجوا دی گئی ہے فی من کے حساب سے۔ تو یہاں پر جتنی مہنگائی ہو رہی تھی، کھادیں مہنگی ہو رہی تھی، پیداواری لاگت میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے پیش نظر جو ہے وہ کمیٹی کی جانب سے 425 روپے کی پرپوزل بھجوائی گئی ہے۔ منظوری کی صورت میں کسانوں کے لیے یہ بہت اچھا اعلان ہوگا جو کہ حکومت کی جانب سے قبل از وقت کیا جا رہا ہے، تاکہ جو کماد ابھی جو سپتمبر میں اگر کاشت ہونا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور بہترین طریقے سے جو ہے وہ شوگر ملز والے دے سکے اور کسان کو اچھا ریٹ ملے۔ 425 اچھا ریٹ کہا جا رہا ہے، کسانوں کا یہ مطالبہ تھا کہ زیادہ ریٹ ہونا چاہیے کیونکہ مہنگائی جتنی زیادہ ہوگی اور اس کے علاوہ جو پیداواری لاگت بڑھ گئی ہے، کھادوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، تو اس کے پیش نظر
ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए ताकि उनके अखराजात भी पूरे हो सके और दीगर जो प्रॉफिट है वो भी उनको ज़मीन बाउंड करने का मिल सके। तो इस सिलसिले में अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर 425 रुपये के करीब जो है वो नोटिफिकेशन जारी होने के हवाले से अब्दुल रहमान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गरीब को रिलीफ ना मिल सका, चिन्योट में सब्ज मसालों और सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। अदरक 760 से 830, लहसुन 360 से 380, आलू 150 से 160 रुपए में फरोख्त। महंगाई के सताए खरीदार चकरा कर रह गए। चिन्योट में अदरक, टमाटर, लहसुन, सब्ज मिर्च और लीमों की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि प्याज 58, सब्ज मिर्च 90, टमाटर 130 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। बैंगन 120, भिंडी 130, टिंडे 130, अरवी 130 रुपए किलो हो गई। कद्दू 80, करेले 95, घिया तोरी 100 रुपए फी किलो है। फलों में सेब 360, आलू बुखारा 320, आड़ू 180, आम 120 रुपए किलो है। दुकानदारों का कहना था कि सब्जियों की पैदावार कम होने की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। खरीदारों ने कहा कि सब्जियों और फलों की कीमतें हमारी पहुंच से दूर हैं, हुकूमत कीमतों में कमी के लिए इक़दाम करे। सब्जी फरोशों की खुद साख्ता महंगाई, सब्जी और फलों की मनमानी कीमतें वसूल की जाने लगी। जंग में प्याज, आलू, लीमू, अदरक और लहसुन की कीमत में कमी न हो सकी। जंग में आलू 110, टमाटर 80, प्याज 50 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। करेले 60, लीमू 160, मटर 250 रुपए में दस्तयाब हैं। खीरा 60, भिंडी 60, फूल गोभी 140, शिमला 169 रुपए किलो हो गया। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया है। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह मोहम्मद नईम ने ज़ाब्ता फौजदारी दफ़ा 144 के तहत जिला भर में किसी भी किस्म के इज्तिमा पर 7 जून के लिए पाबंदी लगा दी है। नोटिफिकेशन के तहत पाबंदी पर फौरी नाफिजुल अमल होगा। डिप्टी कमिश्नर ने खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का अंदिया दे दिया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जिला भर में 7 जून के लिए दफ़ा 144 नाफिज। जिला भर में 7 जून के लिए किसी भी किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने ज़ाब्ता फौजदारी के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दफ़ा 144 का नफाज फौरी नाफिजुल अमल हो गया है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अंदिया दे दिया गया है। फैसलाबाद के तमगा इम्तियाज हासिल करने वाले गुलकार असद अब्बास की हालत गैर, ICU में मुंतकिल कर दिया गया। गुलकार काफ़ी अरसे से गुर्दों की बीमारी में मुब्तला थे। डॉक्टर्स के मुताबिक असद अब्बास को अब जिगर का आर्जा भी लाहक हो गया है। गुलकार ने मुतादिद बार अपने मद्दाहों और हुकूमत से मदद की अपील की थी। मजीद जानते हैं मरियम रजा से। मरियम, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल गुलकार तमगा इम्तियाज़ हासिल करने वाले असद अब्बास इस वक्त जो है उनकी हालत इस वक्त गैर है। इस वक्त ICU के अंदर मौजूद है। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला ये गुलकार जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के अंदर अपना नाम कमाया, आज वो मदद का तलबगार है। पिछले 1.5 साल से डायलिसिस जो है वो उनके हो रहे थे। गुज़िश्ता रात उनकी हालत ख़राब होने पर अहल खाना की जानिब से उनको अस्पताल में ICU के अंदर जो है वो सबमिट करवा दिया गया है। डॉक्टर्स और अहल खाना की जानिब से दुआ की अपील की गई है मदाहों से। उसके साथ साथ यहाँ पर असद अब्बास की अगर हिस्ट्री की बात करें तो वो पिछले 1.5 साल से डायलिसिस करवा रहे थे और गुर्दों की बीमारी में जो थे वो मुब्तला थे। अब डायलिसिस करवाने की वजह से जिगर की बीमारी में जो है वो मुब्तला हो चुके हैं। डॉक्टर्स की जानिब से जो है वो ये कहा जा रहा है कि इनकी हालत इस वक्त गैर है और कुछ भी जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह की बात करें तो उनके अहल खाना की जानिब से मद्दाहों से जो है वो अपील की गई है, दुआ की अपील की गई। इसके साथ साथ असद अब्बास जब इस वक्त होश में थे तब हुकूमत से जब मुतालबा करते हुए नजर आते थे कि उनकी मदद की जाए, उनकी बीमारी को जो है वो ख़त्म करने के लिए उनकी सर्जरी करवाई जा सके ताकि उनके लिए आसानी हो सके। लेकिन ताहाल कोई भी मदद जो है वो नहीं की गई। गुज़िश्ता कुछ दिन पहले जो है अबरारुल हक की जानिब से, गुलकार की जानिब से 5 लाख की जो है इमदाद भी की गई थी। उसके साथ साथ उनको शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के अंदर कहा गया था कि वहाँ पे इलाज जो है वो अपना मुफ्त करवा सकते हैं। लेकिन इलाज करवाने के दौरान ही गुज़िश्ता रात उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से इस वक्त ICU के अंदर है। उनके अहल खाना की जानिब से जो है हुकूमत से इस बात की अपील की जा रही है कि उनके लिए आसानी की जाए। मरियम रजा हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। SP इकबाल डिवीजन उस्मान सैफी की म्यूनसिपल कमेटी चिन्योट में खुली कचहरी, मर्द और खवातीन सालीन की बड़ी तादाद ने मसाइल से आगाह किया। SP उस्मान सैफी ने सालीन के मसाइल सुने और मौके पर हल के लिए इक़दाम जारी किए। SP का कहना था कि थानों में सालीन से बदसलूकी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। SP इकबाल डिवीजन उस्मान सैफी की म्यूनसिपल कमेटी चिन्योट में खुली कचहरी, मर्द और खवातीन सालीन की बड़ी तादाद ने मसाइल से आगाह किया। SP उस्मान सैफी ने सालीन के मसाइल सुने, मौके पर हल किए। थानों में सालीन से बदसलूकी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
फैसलाबाद चक 66 धांधरा राना सनाउल्लाह के डेरे पर 2 नए सब डिवीजन दफातर का इफ्तिताह कर दिया गया है। अमीनपुर सब डिवीजन और सिद्धार सब डिवीजन का इफ्तिताह वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने किया है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवाम भी राना सनाउल्लाह के हमरा मौजूद थे। आपको इस खबर के हवाले से अपडेट कर रही हैं। फैसलाबाद चक 66 धांधरा राना सनाउल्लाह के डेरे पर 2 नए सब डिवीजन दफातर का इफ्तिताह कर दिया गया है। अमीनपुर सब डिवीजन और सिद्धार सब डिवीजन का इफ्तिताह वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने किया है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवाम भी राना सनाउल्लाह के हमरा मौजूद थे। ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फैसलाबाद चक 66 धांधरा राना सनाउल्लाह के डेरे पर 2 नए सब डिवीजन दफातर का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अवैस अली। अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चक 66 धांधरा राना सनाउल्लाह के डेरे पर 2 नए सब डिवीजन दफातर का इफ्तिताह कर दिया गया है। अमीपुर सब डिवीजन और सधार सब डिवीजन का इफ्तिताह वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने किया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवाम भी राना सनाउल्लाह के हमरा मौजूद थे और इसके साथ साथ साबिक MPA मियां अजमल आसफ, चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद और GM ऑपरेशन फेस्को राना अयूब भी जो है वो इफ्तिताह के मौका पर मौजूद थे। इस हवाले से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवाम का यही कहना था कि 2 नए सब डिवीजन दफातर कायम होने से जो है वो सार्फिन को सहूलत मिलेगी और सार्फिन के मसाइल का हल जो है वो पर वक्त मुमकिन होगा। 66 धांधरा में राना सनाउल्लाह के जो है वो डेरे पर इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया गया और इसका जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने किया। इस मौके पर उनका भी यही कहना था कि बिजली सार्फिन को सहूलियत फराहम करने के लिए हर सतह पर इक़दाम किए जा रहे हैं और हल्का के मसाइल के हल के लिए नए सब डिवीजन दफातर जो हैं वो बनवाए गए हैं ताकि सार्फिन को जो है अपने मसाइल के हल के लिए दूर दराज का सफर ना करना पड़े। जो है वो जायद सब डिवीजन दफातर बनने से सार्फिन को सहूलत मिलेगी और सार्फिन के जो मसाइल हैं उनके जो बर वक्त अजाला है वो मुमकिन होगा। अवैस अली तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। यौम आज़ादी का जश्न मनाने के लिए भरपूर तैयारियां। झंग में सब्ज हिलाली परचम, झंडियों, टोपियों और बैजेस के स्टॉल सज गए। सब्ज और सफ़ेद रंग में रंगी बच्चों के लिए खास तौर पर तैयार की गई अशिया तवज्जो का मरकज बन गई हैं। मजीद जानते हैं वसीम अजीज से। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, यौम आज़ादी जो है वो करीब है। 14 अगस्त की खुशियाँ मनाने के लिए पूरी कौम जो है वो पुरजोश है। इस टाइम जंग के शहरी जो है वो आज छुट्टी का दिन है और शाम के औकात में फैमिलीज़ के साथ है शॉपिंग करने बाहर निकले हैं, जहाँ पर वो झंडियाँ, बैजेस, झंडे, इसी के साथ है 14 अगस्त की मैचिंग ड्रेसेस समेत दीगर जो डेकोरेशन की अशिया हैं वो ख़रीद रहे हैं। मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बेटा बताओ, क्या लेने आए हो? 14 अगस्त की चीज़ें। 14 अगस्त की चीज़ें क्या क्या लिया है आपने? झंडा लिया है। झंडा। और क्या लिया है? 14 अगस्त का सर। बच्चों ने जो है वो मुख्तलिफ अशिया खरीदी है। मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, 14 अगस्त के हवाले से क्या क्या स्टॉल लगाया है? जी हमारे पास बच्चों की चूड़ियाँ हैं, शर्टें हैं, निकर हैं, पजामे और मास्क हैं, पोनी हैं, हेयर कैच हैं, काफ़ी आइटमें हैं बच्चों के रिलेटेड। काफ़ी ज़्यादा आइटमें यहाँ पर मौजूद है। मेरा कैमरामैन अजीम अहमद आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो लड़कियों के लिए कैचर, इसी के साथ पट्टियाँ और दीगर जो खूबसूरत सामान है वो यहाँ पर मौजूद है, जबकि छोटे बच्चों के लिए जो है वो सन ग्लासेस मौजूद हैं। इसी के साथ ख़ास तौर पर अगर बात की जाए इन बाजों की, तो इन बाजों के बगैर जो है वो 14 अगस्त की तैयारी बच्चे जो है वो समझते हैं कि मुकम्मल नहीं हुई। इसी के साथ मास्क, फेस मास्क भी यहाँ पर मौजूद है। और वसीम अजीज हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अशिया के बेकाबू दाम, इतवार बाजार भी महंगाई में लपेट में आ गए। इतवार बाजारों में रश मामूल से कम, मजीद इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में महंगाई ने इतवार बाजारों को भी लपेट में ले लिया। इतवार बाजार में रश मामूल से कम। रियाज शाहिद चौक में कायम इतवार बाजार में मुख्तलिफ स्टॉल्स तो लगाए गए, मगर गाहक ना होने के बराबर हैं। शहरी महंगाई से परेशान, कहते हैं गरीब अवाम की कोई जिंदगी नहीं है। मैं अपने सब सियासतदानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये हमारे लिए ना मुसीबतें डाली हैं। गरीब आदमी को इतना जलील किया जाता है, इतना जलील किया जाता है कि 50,000 60,000 से कम कमर नहीं मिलती। वो कफन के लिए तरस रहे हैं। इनसे पूछो कि इन्होंने हमारे लिए क्या किया है। दुकानदार भी गाहक ना आने पर। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने ख़त्म को पहुँचता है। देखते रहिए सिटी 41।